Silence, please, silence. Bismillah Rahman Rahim. We are on our way to explore Passage to India by Imposter. In our last talk, we had talked about diversity in India, and we were talking generally regarding the background of the novel. That background was very much important to understand this novel, because until and unless we know colonialism and how India was colonized, it is beyond, the possibility to understand the exact sense and essence of this novel. And my introductory talk on this novel, I told you that the novel is written by a British writer. A British writer means by a colonizer. The novel is set in a colony, means India. India was colony. And the novel is all about relationship between colonizers and colonized ones. There are different ways to study and go through this novel, but now let's see that what really happens in novel. This novel, A Passage to India by E.M. Forster, is divided into 3 sections. Means he himself has divided his novel into 3 sections. Part 1 is known as Mosque, Part 2 is known as Caves, and Part 3 is known as Temple. According to the division of this novel, different critics have different interpretations. Now, let's first talk about Mosque. Mosque, we all know, represents Islam. Mosque is a place of worship where Muslims pray. They offer prayers there. They believe that mosque is home of God, it's home of Allah. It's a peaceful place where everyone, regardless of social status, fall in prostration before God. There's no discrimination in mosque that he's from elite class, he's from lower class, or he's from middle class. It's all about Muslims. It's all about Muslims. Mosque is a sacred place for Muslims. And people of other faith also regard mosque a sacred place. But Muslims don't take it a good sign that anybody from other faith may enter in mosque. And this is shown in this novel when Mrs. Moore, who came from England and was an English lady, an elderly English lady, when saw a beautiful mosque, she was captivated by it. She thought that it is a beautiful architecture building, as it happens in Europe.
She thought it might be a sort of a sightseeing without realizing the worth and significance of mosque, because we Muslims have great attainment with mosque. She entered in mosque with slippers in her feet. And this is what Muslims take an insult. They take a desecration of mosque, that mosque has been insulted. So Dr. Aziz was sitting in mosque and shouted at her. And beginning she got surprised at what crime. नहीं आ रहा छाती हो तो बड़ा थी आयो छा हाँ अरे मुझे आवाज न तो जिता के हाँ वही कहा एक आवा बाबा लगी है छा जो ये दा सब माने ये थी आए वो तो जो लास्ट में बैठा नो कंद लोडिन पे मां समझा पे तो आवाज मुझे होता ही नहीं हाँ इहो पुटे आवाज़ जो मसलो न आहे आवाज़ तव्हां सभिनी ताईं पचे थो सम्झो इहो सम्झो जो मसइलो तव्हांखे या त मां सिंधीअ में ॻाल्हायां हलो साईं हा कराणी आवाज़ अचेव न कराणी हा हलो साईं रिकॉर्ड त थिए पई थी न असल में तव्हां एॾियूं मोबाइलूं निकितियूं न त मूंखे वरी इम्प्रेशन थी वियो त मूंखे माना हिते ई ॻाल्हाइणो आहे हिकु आवाज़ ईअं ॿाहिरि कन्वे कंदो लाॻा माइक कोन न हूंदा आहिनि Hello, Ling. Huh? So, Dr. Aziz, rebuked her, chastised her, shouted at her, and beginning she got confused that what crime I had committed, that this man shouts at me. Then she realized that she was standing in mosque with slippers. Now, this is a very small incident. This is not a larger incident. Somebody may enter into mosque with slippers when he's from other faith or when he doesn't know the sacredness of mosque. But what Foster tries to tell through this symbolism is that Muslims are very much touchy about their religion. They are very much, what word I should use? Skeptical may be a term, but it's not appropriate. Means they have the sacredness of their religious faith more important than anything else. It is more important than hospitality. It's more important than values. It is more important than even respect. ये ना मुसलमान हुआ मुसलमान will be means all inclusive. पर ये थोड़ी नई गाल थी नहीं religion ते गाल थी नहीं पो मुसलमान ये चिता दी पाना. So through this incident, Foster tries to tell us that Muslims always value religion, and this value of religion and this their that much love for religion is their peculiar quality in India. And in my talk regarding diversity in India, I told you that India is a very diverse place. It is diverse in terms of geography. It is diverse in terms of ethnicity. It is diverse in terms of religion. It is diverse in terms of values, traditions, customs. No part of India messes with another part of India in any way. And two biggest lies were spoken by two biggest parties of subcontinent. Congress believed that India is one, India is Akhand Bharat, and Muslim League, that was the representative body of Muslims, was trying to propagate that India is not one, India is two. Basically, India was neither one nor two. India was multinational, multi-ethnic and multicultural and geographically having multiple diversity. So India is a beautiful canvas. India is sort of a bouquet with different flowers, making it beautiful. And this is what most of people could not consider regarding India. And this is a mistake that even the masters, because the British were the masters now, they even could not realize this thing. Muslims who were the earlier masters, they had no any idea regarding this. And Muslims
had their own interest, their own religion supreme to anything else. But one thing, mosque is a sacred place. Foster tells that if you live in India, you need to take care of mosque. You need to take care of mosque. If you don't take care of mosque, Muslims will get irritation. And one thing, to develop your bond of friendship with Muslims, you need to respect Muslim values. Because Muslims have great attainment with their religion. Mosque also symbolizes oneness of God, and this is what everybody believes. Even Hindus believe that there is one God, Christians believe that there is one God, Muslims believe that there is one God. Mosque is a place of worship, and this worship is part of every religion. So, a mosque is an important chapter, and this introduces the story. With this section, with this part, the story of a passage to India is introduced. But symbolically, mosque represents Muslims. And Muslims weren't in majority in India. Muslims weren't in majority in India. Muslims were a sort of minority when it comes to Hindus. But in terms of religious attainments, Muslims are more powerful, and Muslims are full of rage. Muslims are full of anger. Muslims express their power. It was because Muslims were the ex-rulers of India. बादशाह न हुक्मरान न मालिक आहे हिंदुस्तान सॼे आहे भली घणी तइदाद में थोरा हुजनि पर सॼे हिंदुस्तान ते हुननि जी हुकूमत रही ऐं हुकूमत कॾहिं खां रही माना तक़रीबन 1100 खां वठी करे 1700 1857 and one way or other Muslims have ruled different parts of India. The second part of this novel is caves. Now the caves are full of mystery. The main incident of the novel, the incident around which the entire novel revolves around, the story of entire novel revolves around the hallucination of rape. One is rape. Here there was no case of rape, but here was a sort of hallucination for rape. Adela Costed felt as if somebody was raping her. Because the caves were dark, were deep, were full of mystery. If you shouted there, the sound vibrated. There were different sorts of sounds there. In caves, there are beds. कॾहिं का गार बार ॾिठी हूंदी तव्हां ग़रीबनि मिसाली ॻाल्हि ॿियो न त कालकान देवी मंदर ते करे टूअ ते वठी ईंदा आहियूं ॿारनि खे त उते जेका गार आहे तव्हां ॾिसो फुल ऑफ मिस्ट्री सम्झो हिकु अजीब माना हुनजो हिकिड़ो पंहिंजो आहे उते हिन गार में because these caves, Malabar caves, were sightseeing place and were visited by all. Dr. Aziz was there, उते Dr. Aziz भी हुयो, Adela Costed, उहा बि सभु हुया. ये caves घुमंदे 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 ईअं they went inside. The more you go inside mystery, the more mysterious it becomes. उते छोकिरी ॻाल्हि को जिन थी वियो छा थियो अची रड़ियूं कयूं शुरू कयूं. And then later on she believed that Dr. Aziz attempted to rape her. This is the story. Now the significance of caves as the part of the novel is, a symbol in the novel is, India is basically a great mystery. India is basically a great mystery. The more you go inside India, the more you try to explore India, the more mysterious things happen. You cannot take India, Indian history, Indian culture as a very, straight and in a linear form.
It is mysterious. And this mystery gives birth to different hallucinations. This mystery gives birth to different incidents. This mystery gives birth to different misunderstandings. The people of India living together are the victim of these misunderstandings. The Muslims and Hindus, despite living together, couldn't be friends. British, they were the colonizers and masters. They had their own reservations. Muslims have their own reservations. And this were different communities of India, because I told you that India is not all about Muslims, Hindus and Christians. In India there are Jews, in India there are Parsis, in India there are Sikhs, in India there are different number of sub-religions, major religions and then sub-religions, then sects. Among Muslims, in India there are a number of sects. They are standing pole apart. There is nothing common between them, but they are Muslims. They are counted as Muslims when it comes to non-Muslims. So India is a sort of mystery. And this mystery gives birth to mysterious circumstances. And the more you try to explore, you get in difficult situation. And then misunderstanding, instead of being resolved, these misunderstandings grow. These misunderstandings grow. The third part of this novel is a temple. Now this temple represents both a church as well as a Hindu temple. Means we can say, because it is not properly defined that what was motive or intention of E.M. Foster regarding these sections. This is what we deduct. This is what we, try to find out. This is not written by E.M. Foster that I have divided these chapters or these parts and these parts represent these things. These are different interpretations given by different critics and different leaders and different scholars. And everybody tries to interpret it in a different way. So these are not the solid interpretations that we may fight over this. And no, this is done like this. These are the views of different critics. And with different readings, if you will be reading it, possibly you may find different meaning of all these symbols. They may offer you different meanings, and this is beauty of literature. So the temple represents any worship place other than Muslims. Any worshipping place other than Muslims. Now this again gives importance to Muslims. And main protagonist of this novel is a Muslim, Dr. Aziz. One thing is very much clear, that Britishers always kept and held Muslims in high esteem in India. High esteem not in a sense that they respected Muslims, in a sense that they always believed that Muslims are the main stakeholders. ईअं न हाणे अंग्रेज़ जेके से मुस्लमाननि जी ॾाढी इज़त कंदा त साईं हाणे मुतबर आहियो तव्हां लड़ा असांजा भाइर आहियो हेॾा होॾा ईअं मुस्लमानी वारी भारी वारो नज़रियो बि हलियो हुयो हिंदुस्तान में मुस्लिम्स ऐं क्रिश्चियन जे विच में भारी वारो नज़रियो बि हलियो त बाबा हिंदूस त काफ़िर आहिनि न उहे त अलाह खे बि कोन था मञनि फलाणो कोन था मञनि असां त भला अहले किताब आहियूं असांजे विच में शादियूं बि जाइज़ आहिनि असांजे विच में खाइण पीअण बि जाइज़ आहे हेॾा होॾा वी आर मोर क्लोज़र देन हिंदूस टू ईच अदर इहो बि ड्रामो अंग्रेज़नि कयो इंडिया में त उहे जेके क्रिश्चियंस आहिनि आर मोर एसोसिएटेड टू मुस्लिम्स देन इवन हिंदूस बिकॉज हिंदूस डज़ंट बिलीव इन अल्लाह क्रिश्चियंस बिलीव इन अल्लाह Hindus doesn't believe in prophets, Christians believe in prophets, Hindus don't worship, Muslims worship, Hindus don't respect Moses, Christians respect Moses and they consider Moses as a prophet, Isa besan nabiya, Musa besan nabiya, Ibrahim besan nabiya, ani jehdo aakhri nabi the wo pani chahi indazi. In this context we are very close to each other. Ye tricks bhi keh halayu keh अंग्रेज़न अच्छा मुस्लमान के ये ट्रिक्स हलाइन हिंदुनि करे चवनि मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट मुस्लमान ठग आहिनि एक्सट्रीमिस्ट आहिनि चोर आहिनि बदमाश आहिनि धाड़ेल आहिनि लुटेरा आहिनि सदाईं लुटियूं फुरियूं हेॾां होॾां हे वी आर मोर सिविलाइज़्ड देन मुस्लिम्स असां मुस्लमान खां वधीक सिविलाइज़्ड आहियूं असां वटि रिलीजियस ज़बरदस्ती कान्हे का असां वटि कुझु बि कोन्हे को तव्हां भली हिंदू हुजो का ॻाल्हि कान्हे का सम्झ ऐं अहिड़े तरीक़े सां छाकाणि त जेको मशहूरु हिकिड़ो मैगज़िम आहे त ब्रिटिश बिलीव्ड इन डिवीजन सम्झो न ब्रिटिश बिलीव्ड इन डिवीजन
माना अंग्रेज़ विड़ाए करे ॿिनि ग्रुपनि खे विड़ाए करे पंहिंजी हुकूमत क़ाइमु करण खे माना जेको आहे सो प्रिफर कंदा एंड दिस इज़ वॉट ब्रिटिश ऑलवेज़ डिड। ऐं इहो हर को कंदो आहे, इहो अंग्रेज़ कोन कंदा, इहो हर को कंदो आहे। जेको बि हुकूमत करणु चाहींदो आहे न त उहो ॿिनि ॼणनि खे पाण में विड़ाईंदो आहे त भाई ॿ ॼणा पाण में विड़िया चङा आहिनि, हे पाण में विड़ंदा त माई रूल विल बी ईज़िली यू नो कंटिन्यू, उहो ॾाढो आराम सां हलंदो आहे। पर इन जे बावजूद बि ब्रिटिश हैड सर्टेन रिजर्वेशंस। अंग्रेज़ परेशान थी विया त माना वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, we are serving them, we provide them justice, we provide them schools, we provide them education, we provide them irrigation system, we provide them everything. पर पोइ बि हिननि निभागनि जी दिलनि मां असांजी नफ़रत वञी ई कोन थी, सम्झो। पोइ बि हिननि खे आज़ादियूं खपनि, पोइ बि हे चवनि त बाबा हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो आहे, बाबा मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ आर मोर क्लोजली एसोसिएटेड देन फॉरेन रूलर्स। गांधी जना अटैक बि थियनि था, साईं खिलाफ़त मूवमेंट में मुस्लमान हिंदू पाण में गॾिजी सॼी कमु था कनि, इहे सभु शयूं। दीज वर द क्वेश्चन्स दैट स्पेशली ई एम फॉस्टर इज़ अ मैन ऑफ लिटरेचर ट्राई टू एक्सप्लोर। हिन अ पैसेज टू इंडिया लिखण जो मक़सदु ई इहो त वॉट एवर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर देयर बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स, उहे जेके आहिनि मिसअंडरस्टैंडिंग्स छा करणु खपनि, घटि करणु खपनि, माइटिगेट करणु खपनि। माना उन्हनि जे विच में हिकिड़ो थॉ अचणु खपे, उन्हनि जे विच में हिकिड़ो पास अचणु खपे त जीअं हिकिड़ो सुठो वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश थी सघे बिटवीन मास्टर्स एंड स्लेव्स। पोइ टेम्पल रिप्रेजेंट्स हिंदूज़, टेम्पल रिप्रेजेंट्स क्रिश्चियंस, टेम्पल रिप्रेजेंट्स सिख्स, ठीक है। वन थिंग, द ब्रिटिशर्स स्पेशली E.M. Foster was very much impressed of Hindu ideology and Hindu philosophy। इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में रखी छॾियो, जेको हिंदू फिलॉसफी आहे, जेका हिंदू आइडियोलॉजी आहे, जेका बेसिकली हिंदुइज़म आहे, उनजा जेके कॉन्सेप्ट आहिनि उहे ॾाढा अट्रैक्टिव आहिनि। उन्हनि खे केरु डिटेल में पढ़े न, गौर में पढ़े न, त दे हैव यू नो अ ग्रेटर मैसेज। छो त हिंदुइज़म इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया जो पुराणो तरीन मज़हब आहे। उन्हनि उहो असांखे ॾिसण में बसि ईअं मिथ्स ईंदियूं आहिनि, अहिड़ा न, उन्हनि जा हिकिड़ियूं वॾियूं फिलॉसफीज़। तव्हांजा वॾा वॾा राइटर्स, मिसाल जी ॻाल्हि तव्हांजो एमर्सन, ठीकु आहे, तव्हांजो बर्ट्रैंड रसल, तव्हांजो E.M. Foster, इहे सभु वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिंदू फिलॉसफी। इहे हिंदू फिलॉसफी खां इलाही सारा छा हुया, इम्प्रेस हुया। ऐं E.M. Foster बि वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड ऑफ दिस हिंदू फिलॉसफी। ऐं हिन नॉवल जो जेको हिकिड़ो मेन प्रोटागोनिस्ट आहे, जेको अंग्रेज़ आहे, प्रोफेसर फील्डिंग, जेको प्रोफेसर आहे, प्रिंसिपल आहे कॉलेज जो, उहो बि माना इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिंदू फिलॉसफी। ऐं हुनखे रिप्रेज़ेंट करे थो प्रोफेसर गाडबोले, हिकिड़ो हिंदू प्रोफेसर आहे, उहो हुनखे ॿुधाए थो त माना हिंदूज़ छा आहिनि, कहिड़े तरीक़े सां आहिनि, वॉट आर हिंदू वैल्यूज़। सो these three sections of this novel represent three different ideologies, three different presences, three different major stakeholders in India. India जे टे major stakeholders खे represent करे, Mosque, Muslims, caves, Hinduism, and Hindus means Hindustan, the entire mystery, because Hinduism is still a mystery, ठीक है, and temple, Christians, and people of different faiths। इन्हनि सभिनी शयुनि खे गॾे करे हिकिड़ो मैसेज जेको अ पैसेज टू इंडिया जे बारे में आहे, त अ पैसेज टू इंडिया इज़ ऑल अबाउट ट्रेसिंग आउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। A passage to India is all about telling the ways of Indian life, the ways of master's life and the ways of slaves life। जेके मास्टर आहिनि ऐं उन जा जेके स्लेव्स आहिनि, उहे कहिड़े तरीक़े सां था रहनि, कीअं था रहनि, उन्हनि जे बारे में। मूंखां मतिलबु ॻाल्हि विसरी वञे, लेक्चर ख़तमु करण खां अॻु में हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए छॾियां त अ पैसेज टू इंडिया एंड्स विथ अ मैसेज। ॾाढो हिकिड़ो बहितरीनु नावल आहे। अ प्रोफेटिक एंडिंग इज़ देयर इन अ पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया में डॉक्टर अज़ीज़ ते चार्जिस लॻंदा आहिनि ऑफ रेपिंग स्टेला कोर्सिड, सम्झो, सॉरी एडिला कोर्सिड, उनखे रेप करण जा इल्ज़ाम लॻंदा आहिनि, केस हलंदो आहे, एंड देन
फाइनली ही इज़ अकुड, फाइनली ही इज़ अकुड। अब इल्ज़ाम साबित थींदो आहे, छोकिरी को ख़बर पवंदी आहे न न अहिड़ी का ॻाल्हि कोन्हे, सम्झो, छोकिरी खे रियलाइज़ेशन खां पोइ थींदी आहे त रेप छा हूंदो आहे। ईअं हर भरू रड़ी करे जेको आहे इल्ज़ाम हणी छॾियईं, हर भरू छोकिरो माराए पई, सम्झो। इहे त वेठा माना अंग्रेज़ जज वेठा जो मिड़ई ॻाल्हियूं ॿाल्हियूं ॿुधूं, हाणे जे अची आहे पंचायत में केस, सम्झो, ॻोठ जो वॾेरो को फ़ैसिलो करे आहे, को चौधरी फ़ैसिलो करे आहे, जीअं असां वटि फ़ैसिला थींदा आहिनि, जिरगा विरगा थींदा आहिनि त माना हमरा त पूरो थी वञे हा। पर उते सही मिड़ई हेॾा होॾां जी ॻाल्हि थी, हलो। उते हिकिड़ो प्रोफेसर आहे, प्रोफेसर फील्डिंग, हुन मां ॻाल्हायां थो। Now, Professor Fielding and Dr. Aziz, they were friends. They were basically friends. And Professor Fielding was friend to everyone. ये जो को मां ॿियो टॉपिक लिखो न, फॉस्टर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल मैन। त फॉस्टर जी नज़रनि में हिकिड़ो आइडियल मैन कीअं हुजणु खपे, उनजी कहिड़ियूं क्वालिटीज़ हुजणु खपनि, उहे आइडियल मैन जूं सभु क्वालिटीज़ छा में आहिनि, प्रोफेसर फील्डिंग में आहिनि, ठीकु आहे। त हिन करे मां प्रोफेसर फील्डिंग ते नथो ॻाल्हायां। प्रोफेसर फील्डिंग ऐं अज़ीज़ माना हिन झेड़े खां पोइ दे गॉट सेपरेट। आख़िर हिकिड़े ॾींहुं मिलिया, देवर माना ऑन अ ट्रिप, कारे को घुमण विया त कीअं फाइनली दे मेट टू ईच अदर। हिकु ॿिए सां मिलिया, हिकु ॿिए सां गिला शिकवा कयूं, हिकु ॿिए सां माना ईअं जीअं थींदो आहे दोस्त पाण में थोरा नाराज़ थी वञनि, पोइ गिला शिकवा करण खां पोइ व्हेन दे ट्राई टू बिड गुड बाय, जॾहिं हुननि गुड बाय कयो त नाउ सी द सेटिंग ऑफ फॉस्टर। नॉवेल खे ख़तमु करणु शुरू करणु, उन जा सीन्स ठाहिणु, कंहिंजो कमु आहे, राइटर जो कमु आहे। हाणे जंहिंमहिल हिननि खां देवरान हॉर्सिस त हुया, जंहिं जॻह ते पाण खे गुड बाय कनि पिया त पहाड़ी, हेॾां बि पहाड़ी, ठीकु आहे, हेॾां बि पहाड़ी रस्ता ॿ, and two horses couldn't walk together. Two horses couldn't walk together. ये ॿ horses गॾु उन रस्ते तां पिया वञनि। तंहिंजे करे छा थियो, हिकु रस्ते सां फील्डिंग वियो, हिकु रस्ते सां डॉक्टर अज़ीज़ वियो। नावेल ख़तमु थियो हिते, ख़ुदा थी वियो, हू पंहिंजे रस्ते सां हलियो, ही पंहिंजे रस्ते सां हलियो। नावेल पब्लिश थियो 1924 में, नावेल पब्लिश छा में थियो, 1924 में, 1924 में। But people took it that as if Foster had a vision, Foster had a prophetic vision that a time will come when things will be normalized between British and Muslims. British and Muslims will equally think normalized Hindu, but they will not remain friends forever. They will part their ways. वो पंहिंजा रास्ता अलॻि अलॻि कंदा, माना मुस्लमान अलॻि थींदा, ब्रिटिश अलॻि थींदा। The way novel ended, and it was proved in 1947. 1947 में माना तकरीबन after 23 years of publication of this novel, it was proved that Muslims and Christians, Muslims and Britishers, they had to separate their ways. उन्हनि खे पंहिंजा वेज़ जेके आहे छा करणा, सेपरेट करणा, ठीकु आहे। इहो माना चवंदा आहिनि त इहो वीएन हुनजो फॉस्टर जो वीएन न बि थी सघे थो, ईअं मिड़े ई हुन एंडिंग कई हुजे, पोइ वरी असां हुनखे वीएन जो दर्जो ॾेई छॾियो हुजे। पर सभु शयूं ईअं थींदियूं आहिनि, हर शइ इतफ़ाक़ सां थींदी आहे, एवरीथिंग हैपन्स विथ मेयर कोइंसिडेंस, ठीकु आहे। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आइडियल मैन बाय एम फॉस्टर। इहो ॿियो टॉपिक आहे, सम्झो। सुभाणे पढ़ींदा आहियूं, मोकल न थी आहे त मां हे तव्हांखे हिन वीक में तव्हांजो नॉवल पूरो करायां हा। हा कैंसिल थी वियो, छा थी वियो, माना हाणे थींदा ई न, तव्हां न थियनि, असां त चवंदा त इम्तिहान ई न थियनि, असां त चवंदा त इम्तिहान ई न थियनि। हाणे तव्हांजो घर वेंदो, सम्झो, तव्हांखे घर में केरु पुछा कंदो आहे, इहो त हेॾे था अचो त माइट कुझु न कुझु मिड़ी थोरी रिस्पेक्ट कनि था, थोरो माना हुनजी जान छॾियो था, असांजे मथे में लॻो था अज़ाब वांगुरु, जो मिड़ई जंहिं महिल मंझंदि जो वञो था त केरु न केरु पुछा करे वठो। तव्हांजा माइट ख़ुशि आहिनि त तव्हां वापसि मोटो ई न, सम्झो। हे असां मिड़ई तव्हांखे जॻहियूं बॻहियूं ॾिनियूं वेठा आहियूं, हेॾा होॾा हे हो बर्दाश्त कयूं वेठा आहियूं, न त तव्हां बर्दाश्त करणु जहिड़ा आहियो, तव्हां मां केरु आहे बर्दाश्त करणु जहिड़ो। असांजी अज़मत खे सलाम आहे
कंहिंजा कन बुढ़ा था थी वञनि के मेडिकल फिट कोन्हनि के शिकिलियूं त माशाअल्लाह अलाह सभिनी खे ईअं ॾिनियूं पूरियूं सारियूं का चङी शइ हिकिड़ी त चङी शइ हुजे न त माण्हू खे माना मिसाल ॻाल्हि को लेक्चर ॾियण में मज़ो अचे जो माण्हू खे कॉन्फिडेंस आहे कंहिं तरीक़े सां कंहिं स्टाइल सां जेको आहे वेही ॻाल्हाए सो इहो तव्हां बेफ़िक्र थी वञो तव्हां हिते ई हुजो ख़ैरु आहे ठीकु आहे असां सभु सम्झूं तव्हां ड्रामा छा आहिनि वञो बाबा जान छॾियो असांजा इहे आहिनि असां त चऊं त जान छॾियो सम्झ वञो माइटनि जे मथे में लॻो हा पघार पोकड़ी तूं ॾींदो हलो इहो अकुल न्याणियूं छाणियूं अकुल में मारे वई माना पघार मिले असांखे इज़त सां त सुभाणे यूनिवर्सिटी बंदि कयूं आहे असां करे चाहियो त असां यूनिवर्सिटी बंदि कयूं मजबूरी आहे मजबूरी आहे ऐं तव्हां बि सॼो ॾींहुं निम्रता लाइ लिखंदव सॼो ॾींहुं छले न को ग़रीब मरे उन लाइ लिखंदव कॾहिं बि माना मार पए कॾहिं उस्तादनि लाइ लिखियो त यूनिवर्सिटी में उस्तादनि जा वेल आहे माना उहो असांखे चयो निम्रता तव्हांखे मिंथू करे वई त मुंहिंजे लाइ लिखो माना छल न को इशू थिए तव्हांजा फेसबुक भरिया पिया आहिनि कॾहिं तव्हां इहो गौर कयो त माना हेॾे लतीफ़ यूनिवर्सिटी जहिड़ी महान यूनिवर्सिटी सम्झो जंहिंजे करे तव्हां ॼणनि खे मिसाल जी ॻाल्हि कुझु न कुझु इज़त आहे मुआशिरे में उहा बंदि थी वञे हा घराणी सभु तूं हरू पाणे न सम्झ अकेलो मां कंहिं अकेले माण्हू खे टारगेट कोन थो कयां माना मां जनरल ॻाल्हि थो कयां अच्छा जेके पाण खे सम्झनि जिन खे इहे ॻाल्हियूं लॻनि उहे सम्झनि जिन खे न लॻनि एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज़ तोखे लॻे थी ॻाल्हि दिलि सां लॻे थी न इहा इहा ग़लति ॻाल्हि आहे तूं हुन खां पुछा ॿुधाए लॻे थी नथी लॻे निम्रता लाइ लिखियो ई न हाणे असांजी यूनिवर्सिटी छो नथो लिखी सुभाणे लिखे न त बाबा कहर आहे यूनिवर्सिटी बंदि छो था कयो हा छा पर तव्हां बि ख़ुशि आहियो तव्हां बि ख़ुशि आहियो त यूनिवर्सिटी बंदि हुजे घुमूं फिरूं मेलड़ा हुजनि सम्झ हेॾा होॾा पढ़ण वारो कमु न हुजे बाक़ी ॿिया सभु कम हुजनि तव्हांखे ॾुख इहो आहे त यूनिवर्सिटी बंदि थी थिए त पॉइंटूं बंदि छो थी थियनि तव्हांजी दिली ख़्वाहिश इहा आहे त यूनिवर्सिटी भली बंदि थिए मास्तर भली न पढ़ाइनि पर पॉइंटूं हलाइनि त जीअं असांजो यूनिवर्सिटी में अचणु थिए असांखे ख़बर आहे न तव्हांजे घर में इज़त ई कान्हे का तंहिंजे करे जान छॾाइण लाइ हिते ईंदा आहियो पर ईअं थोरो असां बि सम्झूं था तंहिंजे करे असां पॉइंटूं पॉइंटूं बंदि था करायूं हलो ॻाल्हि ॿुधो हाणे छॾियो हाणे घणो थी वियो E.M. Foster in this novel Passage to India तव्हांजी क्लास अधु कलाक थियो त 31 मिंट थिया आहिनि टोटल हा न मां लेट ईंदो ई न मां पंहिंजे 15 ते पूरो ईंदो आहियां न उहा 3 वॼा थिया आहिनि चुप करे भाई ॻाल्हि ॿुधो मां 2 मिंट खिली छा ॻाल्हायो मां 2 मिंट खिली छा ॻाल्हायो त तव्हांखे ॻाल्हि विसरी वई छा पोइ मां साॻियो इब्राहिम को कराई जंहिंखे वञिणो आहे इज़त शराब सां निकिरी वञे मूंसां फशरी न कंदा कयो पोयां वञे निकिरी वञे न ठीकु आहे न एॾो तोखे मैडम में धड़कनि जो शौक़ु आहे जंहिंखे मैडम में धड़कनि जो शौक़ु आहे निकिरी वञे भई ईअं क्लास मुंहिंजे में ईअं नमूनेबाज़ी ईअं न कंदा कयो केॾी महिल मां क्लास वरितो न पोइ मां इहा ॻाल्हि विसारे छॾींदो आहियां त कंहिंजो क्लास आहे ठीकु आहे तंहिंजे करे अॼोको ॾींहुं रिआयत अथव नेक्स्ट टाइम अगरि मूंसां तव्हां इहा कई न इहो हमेशह रखी छॾियो त मां केॾो बि प्यार सां ॻाल्हायां पर आहियां जेको आहे न उहो सभु ई केॾी महिल बि क्लास वठी सघां थो मां 2 टे ॾींहं हुन जी ॻाल्हि वांगुरु ज़ाइला कोन्हे कोई न हथों ने जो हथियार चलाना छोड़े भूले नहीं है ते मां तव्हांजी बहारी वठणु छॾी आहे ईअं न आहे त मूंखां बहारी वठणु विसरी वई आहे बहारी मां शागिर्द नहीं वठणु बेंच कोन वठंदो आहियां ठीक है silence please silence as I had told you in my first talk of this lecture in lecture first talk में तव्हां ॿुधायमि that this novel is written by a British writer and a British writer जो मक़सद बि तव्हांखे ॿुधायुमि उहो छा हुयो to create soft image of Britishers among local Indians ठीकु आहे न माना हू चाहे पियो हुन डेलिब्रेट अटेम्प्ट इहा हुई त
हू हिकिड़ो सॉफ्ट इमेज पैदा करे रिगार्डिंग मास्टर्स। इहा ॻाल्हि प्रूव थिए थी, माना देयर इज़ नो एनी सॉलिड एविडेंस रिगार्डिंग दिस। या वरी हो चए कोन थो E.M. फॉस्टर त मुंहिंजो मक़सदु इहो आहे। इहा ॻाल्हि प्रूव ईअं थी थिए त E.M. फॉस्टर हिन सॼे नावल में द मैन whom he eulogizes a lot, man whom he loves a lot, man whom he admires a lot, man who is icon of excellence, man who is embodiment of all values, man who is in fact an ideal man, जेको हिन नॉवल में पेश कयईं। हाणे हिन नॉवल में मुस्लमान बि हुआ, हिंदूस बि हुआ, क्रिश्चियंस बि हुआ, इंडियंस बि हुआ, फॉरेनर्स बि हुआ, बट आइडियल मैन अकॉर्डिंग टू E.M. फॉस्टर, माना फॉस्टर जंहिंखे पोर्ट्रे थो करे, जंहिंखे असां सम्झूं था त इहो फॉस्टर चाहे थो त दिस मैन शुड अपीयर एज इवन द हीरो ऑफ दिस नॉवल, छाकाणि समटाइम क्वेश्चन राइज़िस दैट हू इज़ इन फैक्ट द हीरो ऑफ दिस नॉवल। हिन नॉवल जो हीरो केरु आहे? उहो आहे प्रोफेसर फील्डिंग। केरु आहे? प्रोफेसर फील्डिंग। नाउ प्रोफेसर फील्डिंग इज़ अ लविंग जेंटलमैन ऑफ एल्डरली एज, एज जो बि तमामु थोरो वॾो आहे, माना ईअं नौजवान न आहे, को नंढड़ो कोन्हे को, प्रोफेसर आहे, अकेलो आहे, सम्झो, अनमेरिड, हैविंग ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑलवेज रिमेन्स सीरियस, एंड sometime people felt as if there is a tender note of sadness on his face every time। माना हर वक्त हुन जे फेस ते, माना सिंधी में 12 न वॼंदा, पर 12 न घटि में 11 न वॼंदा, माना हर वक्त माना सीरियस, सम्झो, माना हरू भरू न, ईअं मज़ाक करिणो आहे न, छा न छू, हुनजो हिकिड़ो माना हिकिड़ो स्टैंडर्ड हो। ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। And what are the qualities that make him unique? हिकिड़ो त हुन सीरियसनेस। हिकिड़ी ॻाल्हि यादि करे छॾियो त जेको माण्हू सीरियस हूंदो न, ठीकु आहे, हाणे सीरियसनेस जा डिफरेंट माना रीज़न्स आहिनि, उहो ई माण्हू लाइफ खे सीरियस वठी सघे थो, सम्झो, बिकॉज़ लाइफ इज़ सीरियस। आई हैव बीन टीचिंग दिस टू एवरी स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर। ॿुधाईंदो आहियां, नावल में त पढ़िया आया आहियूं त बाबा ज़िंदगी आहे ई सीरियस, ज़िंदगी आहे ई अज़ाब, ज़िंदगी आहे ई ट्रेजिडी, ज़िंदगी आहे ई तकलीफ़, सम्झोसीं। नाउ इन दिस सीरियस नोट ऑफ प्रोफेसर फील्डिंग, सम्झो, हाणे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधी छॾियो, हिन नालो प्रोफेसर फील्डिंग आहे। जेकॾहिं न पेपर में कंहिं हेनरी फील्डिंग लिखियो, ॿार शयुनि खे ईअं था कंफ्यूज़ करे छॾनि। मां इहो क्वेश्चन ॾिनो, छोकिरे मथां ई मथां लिखियो हेनरी फील्डिंग। ही इज़ कंट्रोल्ड बाय थॉट एंड रीज़न। आइडियल मैन जी पहिरीं निशानी, आइडियल मैन जी पहिरीं निशानी त एन आइडियल मैन, ज़िंदगी जो हिकिड़ो आइडियल मैन आहे, हिकिड़ो मैन माण्हू, हिकिड़ो सीरियस माण्हू आहे, उहो इज़ कंट्रोल्ड बाय थॉट एंड रीज़न। माना उहो जेके बि डिसीशन्स कंदो, जेको ॻाल्हाईंदो, जेको कमु कंदो, जेके एक्शन्स कंदो, सोचे सम्झे कंदो, ऐं रीज़नेबल हूंदो। छा हूंदो? रीज़नेबल हूंदो। ऐं हवाली कोन हूंदो, ऐं जज़्बाती कोन हूंदो, परायूं ॻाल्हियूं ॿुधी करे बसि उन ते यकीन करे, ऐं जीअं तव्हां कंदा आहियो फेसबुक जी जेका पोस्ट आहे, इहा त पक ई कान्हे का त चङी आहे, सही आहे, ग़लति आहे, वेरीफाइड आहे, प्रूव्ड आहे, अनप्रूव्ड आहे, फैक्ट आहे, फिक्शन आहे, साईं मज़हबी फरीज़े वांगुरु हुनखे शेयर। अरे मार पियो, थोरो ॾिसो त सही, का शइ आहे, सही आहे, ग़लति आहे, उनखे वैल्यू कयो, उनखे एवेल्यूट कयो। पोइ तव्हां ई अनपढ़ियल में कहिड़ो फ़र्क़ु थी वियो? पढ़ियल लिखियल माण्हू ऐं अनपढ़ियल माण्हू में कुझु न कुझु त फ़र्क़ु हुजणु खपे न। ऐं इन जे करे ई असां वटि देयर इज़ डेप्थ ऑफ लर्नेड पीपल, बिकॉज़ वी डोंट कंट्रोल अवर सेल्फ, वी डोंट कंट्रोल अवर इमोशंस थ्रू रीज़निंग। But Foster tells us that an ideal man is a man who controls his feelings through thought and reasoning. अच्छा, जॾहिं माण्हू थॉट एंड रीज़निंग ते ईंदो आहे न, पोइ उहो माण्हू नोज़ दी वर्थ ऑफ दिस लाइफ। उनखे लाइफ जी वर्थ जी ख़बर पइजी वेंदी आहे। उनखे ख़बर आहे त बाबा अचो सूरनि वारियूं कयूं सूर पचा, कनी घणा कनी थोरा, नाहे का सूरनि धार। माना हुनखे ख़बर आहे त जहिड़े तरीक़े सां मूंखे सूर आहिनि न, अहिड़े तरीक़े सां हे ग़रीब मिसकिन बि सूरनि वारा।
हितां जी त शिकिलनि में ई सूरत हाल लॻनि, पर माना माण्हू इहो थोरो फील करे वेंदो आहे त बाबा दीज़ आर मैन आर वुमेन इन डिस्ट्रेस। त उहो माण्हू कॾहिं बि कंजूस न थींदो आहे। उहो माण्हू बिकॉज़ ही बिलीव्स, a man of reasoning and man of thought believes that the resources that I have are given by God, are given by nature, and he's always generous in spending those means natural resources. They often become hospitable. Professor Fielding was very much hospitable. केर माण्हू आयो कोन्हे को हुनखे माना चांहि पियारणु, हुनखे मानी खाराइणु, हुनखे हाणे अंग्रेज़नि वटि हलो आहे ड्रिंक वग़ैरह बि ऑफर कंदो, सम्झ, छाकाणि त शराब वग़ैरह अंग्रेज़ पीअंदा आहिनि, पोइ जेको पीए पार्टियूं करणु। इहा अंग्रेज़नि में इहा असां वटि जेका पिट पार्टियुनि पिया वञी आहे न, इहा अंग्रेज़नि माना जेको आहे इंट्रोड्यूस कराए, ऐं हिननि जे कल्चर जो हिसो आहे। दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर कल्चर। हुन खां अलावा एन आइडियल मैन, हाणे जेको अहिड़े क़िस्म जो माण्हू हूंदो, उन माण्हू वटि somebody comes for any help, तव्हां छा था चओ हुनखे जवाबु ॾींदो? हुनखे जवाबु ॾींदो? हिकिड़ो टेंडर हार्ट वारो माण्हू, हिकिड़ो हॉस्पिटेबल माण्हू, उन वटि जेको माण्हू ईंदो त उहो पंहिंजे औकात ऐं पंहिंजे हालात जे हिसाब सां ही वॉज ऑलवेज हेल्पफुल, जेतिरो थी सघंदो माण्हू जी मदद कंदो। हाणे जॾहिं इहे सभु क्वालिटीज़ गॾु थी वञनि, somebody is controlled by reasoning, somebody is controlled by thought, माना बैलेंस माण्हू आहे, उहो ईमानदार बि हूंदो, उहो हॉस्पिटेबल बि आहे, महिमान नवाज़ बि आहे, उहो काइंड बि आहे, उहो हेल्पिंग बि आहे, उनखे रिवार्ड छा मिलंदो? रिवार्ड छा मिलंदो? इज़त मिलंदी, माना उहो पॉपुलर थिए। उहो छा थींदो? इज़त माना इहो न पॉपुलर थींदो, पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट देम। त एन आइडियल मैन इज़ वन who becomes popular and people are talking about his good deeds. पॉपुलर त शैतान बि थींदो आहे, सम्झो? हुनजी का शेर आहे न त बदनाम हुए तो क्या नाम न होगा, त अहिड़े तरीक़े सां पॉपुलर त उहो बि थींदा, बट ही इज़ पॉपुलर इन गुड डीड्स। हाणे जॾहिं माण्हू उन स्टेज ते पहुची वेंदो आहे न, जॾहिं पॉपुलर बि हुजे, सभु कुझु हुजे, त पोइ उहो माण्हू छा थींदो आहे? उहो माण्हू बोल्ड एंड करेजियस थींदो। हाणे उहो कंहिं खां डिॼंदो कोन्हे। नाउ ही प्रेज़ेंट्स हिज स्टेटमेंट, प्रेज़ेंट्स एवरीथिंग विदाउट एनी फेयर, ठीक है ना? So an ideal person is a person having courage and he's bold. ऐं इहे सभु ॻाल्हियूं उहो कंदो one who thinks beyond race. मिसाल यार केरु माण्हू रुॻी पंहिंजी रेस जे बारे में, पंहिंजी क़ौम जे बारे में, पंहिंजे मज़हब जे बारे में, पंहिंजी एथनिसिटी जे बारे में, पंहिंजी लोकेलिटी जे बारे में सोचींदो त उनखे त पीपल ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर ग्रुप रिलेट बि आहे न। पर जेको माण्हू एॾी वॾी पॉपुलरिटी वठंदो त छा कंदो? ही विल थिंक बियॉन्ड दीज़ डिफरेंसिस, रेशियल डिफरेंसिस, रिलीजियस डिफरेंसिस, एथनिक डिफरेंसिस। सो एन आइडियल पर्सन, रेफरेंसिस टू प्रोफेसर फील्डिंग, वॉज अबव क्लास एंड रेस। ऐं आख़िरी ॻाल्हि, हिकु ॿ ॻाल्हियूं मूंखे ख़बर आहे, हाणे तव्हांखे देरि थी थिए, कम जी ॻाल्हि अथव, हाणे ॿुधो। E.M. फॉस्टर हिकिड़ी 20वीं सदी जी वॾे में वॾी ग़लती कई। 20वीं सदी वॾे में वॾी ग़लती कहिड़ी ग़लती कई? कि जेको आइडियल मैन आहे न, इहो उहो नोशन हुई जेको असां हणंदा आहियूं पाकिस्तान में, कि जेको आइडियल मैन आहे उहो सेक्शुअली डिसिप्लिन्ड आहे, सम्झो? माना जेको माण्हू पंहिंजे सेक्शुअल डिज़ायर्स खे कर्ब करे उनखे माना कंट्रोल में कयो वेठो हुजे, उहो आइडियल मैन। ऐं इहो कीअं प्रूव कयईं? प्रोफेसर फील्डिंग सॼी ज़िंदगी वीचारे हिंदुस्तान में गुज़ारी, वीचारे शादी न कई, सम्झो? शादड़ी त न की, पर को अफेयर बि न कई, तंहिंजे करे इट मेक्स हिम एन आइडियल मैन, सम्झो? हाणे इहो पंहिंजो E.M. फॉस्टर जो पंहिंजो ओपिनियन आहे। इहो ओपिनियन अगरि जे 20वीं सेंचुरी जे ॿियनि राइटर्स रिजेक्ट करे छॾियो। पाण D.H. लॉरेंस पढ़ी आयासीं, लॉरेंस इज़ अगेंस्ट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तंहिंजे करे व्हेन कंपेयर्ड द मॉडर्न राइटिंग में लॉरेंस स्टैंड्स अबव फॉस्टर। लॉरेंस फॉस्टर खां मथे बीठो आहे, छाकाणि त फॉस्टर वटि अहिड़े क़िस्म जी माना वैल्यूज़ हुया, माना इहे जेके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आहे न। ऐं मां तव्हांखे ॿुधायो इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्निज़म में त दोज़ हू विल प्रोमोट ट्रेडिशनलिज़म और नॉट मॉडर्न राइटर्स। पर असां E.M. फॉस्टर खे मॉडर्न राइटर चवंदा आहियूं, छाकाणि त सिर्फ़ु हिन मामले में खणी ट्रेडिशनलिस्ट हो, बाक़ी ॿियनि शयुनि में मॉडर्न बि हुयो। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खां अलावा इकोनॉमिकल बि हुयो, कंजूस खणी न हुयो, पर थोरो इकोनॉमिकल बि हुयो। ऐं टू कंक्लूड दिस, आख़िर में तव्हां ख़ुशख़बरी ॿुधायां, मथां तव्हां चओ त आइडियल मैन थियो, सॼी ज़िंदगी शादी न करणी पए, त
आख़िरी ॾींहंनि में जॾहिं नावल ख़तमु थिए पियो, उन्हनि ॾींहंनि में एडिला कोस्टेट जी जेका माउ हुई या न पोड़ी आई, सम्झो, उहा बि ॾाढी सुहिणी, उन सां असांखे जेको आहे प्रोफेसर फील्डिंग शादी कई। उन ते वरी हिकिड़ो ॿियो इल्ज़ाम लॻो, माना फील्डिंग, हुन चवंदा था त रेस बेस में फ़र्क़ु न कंदो, पर फील्डिंग खे शादी करण लाइ माई खपे कहिड़ी, अंग्रेज़ाणी खपे। हिंदुस्तान में सॼी ज़िंदगी गुज़ारी, का हिंदू का मुस्लिम का लोकल हिंदुस्तान जी माई सां शादी न कई, शादी वञी कई त काथे कई, हिकिड़ी ब्रिटिश माई सां कई, ऐं ब्रिटिश बि कहिड़ी, विडो सां, पोड़ी सां, कुराड़ी सां कई। माना हुननि वटि पोड़ी कुराड़ी ब्रिटिश इज़ मोर एक्सेप्टेबल देन यंग। हा मिसिस मूर, हा हुन सां, हा मिसिस मूर पाण हुन सां शादी कई, कंहिंजी बाबा उन सां, हा एडिला कोस्टेट, मिसिस मूर जी, पर माना अंग्रेज़ाणी सां शादी कई, सम्झो, उन सां शादी करे प्रूव कई त मास्टर्स कैन नेवर बी फ्रेंड्स, मास्टर्स कैन नेवर ट्रीट देयर स्लेव्स ऑन इक्वल फुटिंग्स, मास्टर कॾहिं बि स्लेव्स खे इक्वल फुटिंग ते ट्रीट नथा कनि। इहो असांजी क्रिटिसिज़म आहे जेका असां हुनखे कयूं था, बाक़ी अहिड़ी का बि ॻाल्हि न आहे। सो दीज टू टॉपिक्स आर कवर्ड, हे ॿ टॉपिक कवर थी विया, बाक़ी देयर आर टू टॉपिक्स ऑफ दिस नॉवल। हिन नॉवल जा ॿ टॉपिक रहिया आहिनि, हिन खां पोइ विल बी स्विच टू अनदर नॉवल। थैंक यू वेरी मच।